ایک جنگل میں ایک چیل نے 2 انڈے دے رکھے تھے۔ چیل کو بہت عرصے بعد سنتان کی خوشی ملنے والی تھی۔ چیل اپنے انڈوں سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ ان سے ڈھیروں باتیں کرتی۔ بارش کا موسم لگ رہا ہے، لگتا ہے ابھی بارش ہو جائے گی۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ اپنے لیے بھوجن کی کھوج کر آتی ہوں۔ ایسا کہتے ہوئے وہ چیل وہاں سے اڑ جاتی ہے۔ بارش کا موسم تو بن ہی چکا تھا، کچھ دیر میں بارش برسنے والی تھی۔ وہیں پر ہی ایک چڑیوں کا پریوار بھی رہا کرتا تھا۔ چڑیا نے 2 انڈے دے رکھے تھے۔ رانو، تم ایسا کرنا، انڈوں کا خیال رکھنا، میں بھوجن کی کھوج کر کے ابھی آتا ہوں۔ موسم بھی کروٹ بدل رہا ہے۔ ٹھیک ہے بلو جی، آپ جلدی آ جائیے گا، موسم ٹھیک نہیں لگ رہا، مجھے چنتا ہوئی رہے گی جب تک کہ آپ لوٹ کے نہیں آ جاتے ہو۔ بس پھر کیا تھا، چڑیا اپنے انڈوں کے پاس رکشا کے لیے بیٹھ جاتی ہے اور بلو چڑا بھوجن کی کھوج کے لیے نکل جاتا ہے۔ میرے پیارے انڈے، میں دعا کروں گی کہ ایک انڈے میں سے میرا بیٹا اور ایک میں سے بیٹی ہو۔ میں ان کے نام بھی سوچ لیتی ہوں۔ جنگل میں طوفانی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ چیل کا گھونسلہ بارش اور ہوا کے کارن گر جاتا ہے اور اس کے دونوں انڈے بھی گر کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب چیل واپس گھر لوٹتی ہے تو یہ دیکھ کے بہت روتی ہے۔ چیل کو تو بہت دنوں بعد سنتان کی خوشی ملنے والی تھی۔ اس نے تو بہت علاج کروایا تھا اپنے بچوں کے لیے۔ آخر مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ جس کی سزا مجھے یہ ملی ہے؟ دوسری طرف جیسے تیسے کر کے بلو بھی بھوجن لا کے واپس آ جاتا ہے۔ ارے رانو، آج تو بارش کے کارن اڑا ہی نہیں جا رہا تھا، بہت مشکل سے بھوجن لے کے آیا ہوں۔ ہاں بلو جی، میں بھی بہت چنتت ہو رہی تھی آپ کے لیے۔ بلو جی، اگر بارش زیادہ ہوتی رہی تو ہمارے انڈے تو خراب ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے رات ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں یہی باتیں ہی کرتے رہتے ہیں اور وہاں چیل روتے ہوئے رات بتا دیتی ہے۔ وہ یہی سوچتی رہتی ہے کہ اتنا انتظار کرنے کے بعد اگر مجھے انڈے ملے بھی تو وہ بھی نہ رہے۔ اور پھر صبح ہو جاتی ہے۔ چیل وہاں سے اڑ جاتی ہے۔ راستے میں اسے ایک خالی گھونسلہ نظر آتا ہے۔ وہ وہاں آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ ارے یہ تو خالی گھونسلہ ہے، لگتا ہے کوئی پکشی بنا کے خود یہاں سے چلا گیا ہے۔ چلو میں یہیں پہ ہی رہ لوں گی، باقی کی زندگی میری یہاں آرام سے گزر جائے گی۔ بچے تو میرے نصیب میں تھے ہی نہیں۔ ابھی وہ یہی باتیں ہی کر رہی ہوتی ہے کہ وہاں ایک چڑیا اور ایک طوطا آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ چیل دیدی، یہ تو میرا گھونسلہ ہے، میں نے اب اپنا گھر خرید لیا ہے، یہ گھونسلہ میرا ہی ہے، مجھے اس کو بیچنا ہے، اگر آپ یہ لینا چاہتی ہیں تو مجھے کچھ پیسے دے دیں۔ اچھا، میں اس گھونسلے کو خالی دیکھ کے اس میں آ گئی تھی، میرے پاس کچھ پیسے ہیں، تم ایسا کرو پیسے لے لو۔ کل ہی میرے 2 انڈے اور گھونسلہ ہوا اور بارش کے کارن گر کے ٹوٹ گئے ہیں۔ کچھ پیسے جو میرے پاس جمع تھے وہ میں اپنے ساتھ لے آئی ہوں، یہ لو پیسے، اب یہ گھونسلہ میرا ہوا، اب سے میں ہی اس میں رہوں گی، تم یہ پیسے لو اور جاؤ یہاں سے۔ اچھا ہوا کہ مجھے بنا بنایا گھونسلہ مل گیا۔ پھر طوطا اور چڑیا وہاں سے وہ پیسے لے کے واپس آ جاتے ہیں۔ چیل بھی خوش ہو جاتی ہے کہ اور کچھ نہ صحیح مجھے کم سے کم بنا ہوا گھونسلہ تو مل گیا۔ چلو، رہنے کی چنتا تو ختم ہوئی، اب جاتی ہوں اور اپنے لیے بھوجن کی کھوج کر کے آتی ہوں، ایک تو بارش میں بھوجن بھی نہیں ملتا۔ وہ ابھی راستے میں ہی ہوتی ہے کہ پھر سے تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ پھر سے تیز بارش شروع ہو گئی ہے، بارش پہ تو بھوجن ملتا ہی نہیں۔ چلو رانو، میں اب جا کے بھوجن کی کھوج کرتا ہوں۔ سنیے جی، کل بھی آپ بارش پہ گئے تھے تو مجھے بہت چنتا ہو رہی تھی، اب میں ایسا کرتی ہوں میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ پھر رانو چڑیا اور بلو چڑا دونوں ہی بارش میں ہی بھوجن کی کھوج کو نکل جاتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اتنی تیز بارش میں کون آئے گا ہمارے انڈوں کو چرانے کے لیے، ہر کوئی تو اپنے گھونسلوں میں ہوگا۔ ادھر کھوج کرتے کرتے چیل کی نظر ان انڈوں پہ پڑ جاتی ہے، وہ ترنت سے ہی وہاں آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ ارے واہ، اوپر والے نے تو میری سن ہی لی، چلو میرے اپنے انڈے تو گم ہو ہی گئے لیکن مجھے بھوجن تو ملا۔ ایسا کرتی ہوں ان میں سے ایک انڈا ابھی چرا کے لے جاتی ہوں، آرام سے بیٹھ کے پی لوں گی اور پھر کل پھر سے یہاں آؤں گی دوسرا انڈا لینے۔ پھر چیل ایسا ہی کرتی ہے۔ ادھر سے بلو اور رانو چڑیا بھی وہاں سے واپس لوٹ کے اپنے گھونسلے کی طرف آ جاتے ہیں۔ بارش ابھی بھی ہو رہی تھی۔ یہاں سے چیل وہ انڈا لے کے اپنے گھونسلے میں آ جاتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے۔
बहुत समय से मैं खोज करने के लिए निकली हुई थी। अब मेरी सांस फूल गई है। इधर से बारिश भी अब रुक गई है। थोड़ी देर में ये अंडा पी लेती हूँ। इतनी देर में उसका भाई चीलू एक मांस का टुकड़ा लेके उसके घोंसले की तरफ आ जाता है। वो अपनी बहन के पास आके बैठ जाता है। मांस का टुकड़ा भी वो अपने साथ लाया था। दीदी, आज तो मुझे काफी मांस मिल गया था। मैं तुम्हारे लिए भी ले आया हूँ। मैं जानता था कि बारिश बहुत तेज हो रही है तो तुम्हें तो मांस नहीं मिला होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी ले आया हूँ। अरे चीलू मेरे भाई, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं भी एक अंडा चुरा के लाई थी पीने के लिए। चलो इसको मैं सुबह पी लूंगी। अब मैं ये मांस खा लेती हूँ। चीलू वहां से उड़ जाता है। मांस का टुकड़ा वो अपनी बहन को दे के वहां से चला जाता है। इधर जब बल्लू और रानो वापस अपने घोंसले में आते हैं तो एक अंडा देख के बहुत रोते हैं। अरे हमारा एक अंडा कहाँ गया? हमारे 2 अंडों में से एक अंडा बचा है। हाँ हाँ, मेरे 2 बच्चे होने थे, अब एक ही अंडा पड़ा है। किसने चोरी कर लिया मेरा एक अंडा? हाँ हाँ, इतनी तेज बारिश में कौन था जो मेरा अंडा चुरा के ले गया? बल्लू जी, मैं कैसे करूंगी? मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी बल्लू जी। दूसरी तरफ चील ने भी मांस खा के अपना पेट भर लिया था। चलो जी, मांस खा के मेरा पेट तो अच्छे से भर गया है। अब मैं ऐसा करती हूँ, इस अंडे को यहीं पर रहने देती हूँ और खुद सो जाती हूँ। बल्लू जी तो कितनी देर से अंडे की खोज करने के लिए गए हुए हैं। अब तो शाम हो गई है और रात होने वाली है। पता नहीं बल्लू जी को वो अंडा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। काश के मैं ना जाती। इसी तरह से अपने अंडे को रोते रोते रात हो जाती है। चिड़िया सो जाती है और फिर दूसरे दिन उसको यकीन ही नहीं होता क्योंकि अंडे में से एक प्यारा सा लड़का चिड़ा निकला था। अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाबा आते ही होंगे। कुछ देर में बल्लू चिड़ा भी वहां आ जाता है और वो छोटे से अपने बच्चे जिसका नाम वो कुकू चिड़ा रखते हैं देख के बहुत खुश हो गए। चील सुबह उठते ही अंडे की जगह चिड़िया की बच्ची को देख के हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, ये अंडा तो फूट गया और इसमें से बच्ची चिड़िया निकल आई है। चलो आज का नाश्ता इसी चिड़िया से ही करती हूँ। वो उसे खाने ही लगती है कि वो आवाज सुनती है। मम्मा, मेरी मम्मा, मुझे खाना दो ना मम्मा। क्या क्या कहा तुमने? मम्मा कहा मुझे? ये लफ्ज सुनने को तो मेरे कान तरस गए थे मेरी बेटी। अब से तुम ही मेरी बेटी हो। मैं तुम्हें माँ बन के ही पालूंगी। तुमने तो मेरी ममता को जगा दिया। वो फिर से कहती है, मम्मा, मम्मा क्या आपने मेरे लिए खाना नहीं रखा था? मुझे खाना दो ना मम्मा। खुशी, खुशी नाम है तुम्हारा क्योंकि तुमने मुझे जहाँ की खुशी दी है। मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लाती हूँ। तुम यहीं मेरा इंतजार करना, मैं अभी आई। ऐसा कहते हुए चील वहां से उड़ जाती है। उसे अपनी बेटी खुशी के लिए खाना जो लाना था। खुशी घर में अकेली बैठी होती है कि वहीं पर चील का भाई चीलू उड़ता हुआ आ जाता है। जब वो चिड़िया के बच्चे को चील के घोंसले में आके देखता है तो वो बहुत गुस्सा होता है। अरे ये चिड़िया का बच्चा मेरी बहन के घोंसले में क्या कर रहा है? अच्छा, अब मैं समझा, मेरी बहन ने इसको खाने के लिए पकड़ा होगा और फिर किसी काम से उसे जाना पड़ा होगा। चलो ऐसा करता हूँ, मैं ही इसको मार देता हूँ। आधा मैं खा लेता हूँ और आधा दीदी के लिए रख दूंगा। मुझे भी तो आज पूरे दिन से कोई शिकार नहीं मिला। वो चिड़िया के बच्चे को खाने ही लगता है कि वहां पर चील उड़ती हुई जल्दी से आ जाती है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? इसको मत खाओ, ये मेरी बेटी है। बेटी खुशी, खुशी नाम है इसका। अब से मैं इसकी माँ हूँ। क्या पगला गई हो दीदी? क्या तुम्हारी बेटी एक चिड़िया की बच्ची हो सकती है? चलो पागल ना बनो, मैंने भी आज कोई शिकार नहीं किया। चलो इसको मिलके खाते हैं। पागल ना बनो तुम। नहीं चीलू, तुझे मैंने कह नहीं दिया? तू इसका मामा है, ये मेरी बेटी है। अब से मैं ही इसको पालूंगी। इसने मुझे माँ कहा है और मैं इसकी माँ बन के ही दिखाऊंगी। इतने बरसों से जिस खुशी को मैं तरस रही हूँ वो खुशी ये है। अगर तूने फैसला कर ही लिया है दीदी, तो अब से मेरा तेरा कोई नाता नहीं, क्योंकि बिरादरी वाले तुझसे तो नाता तोड़ ही देंगे। अगर मैंने तेरे साथ गठजोड़ रखा तो मुझसे भी नाता तोड़ देंगे। अब से मैं तेरे पास कभी नहीं आऊंगा। और हाँ, मैं तुझे एक फेवर दे सकता हूँ कि इस बच्ची के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन कब तक ये हमारी बिरादरी से बच सकती? ऐसा कहते हुए चीलू वहां से उड़ता हुआ चला जाता है और वो चील से नाता तोड़ देता है।
समय इसी तरह से ही गुजरता गया और फिर चील एक घर किराए पे ले लेती है। वो अपने बच्चे को लेके एक घर में चली जाती है। खुशी मेरी बच्ची, इस घर में आए हुए भी हमें बहुत दिन हो गए हैं। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सब सच बता दूं। मेरी बेटी, तुम एक चिड़िया की बच्ची हो। माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ और तुम मेरी माँ हो। अब मैंने उड़ना भी शुरू कर दिया है। तुम मुझे अपने साथ भोजन लाने ले गया करो माँ। नहीं मेरी बच्ची, सच यही है कि तू एक चिड़िया की बेटी है। मैंने तुझे माँ से भी बढ़ के प्यार दिया है। तेरी खातिर मैंने अपनी बिरादरी छोड़ी, मैंने तेरी खातिर सब कुछ खो दिया, लेकिन तू एक चिड़िया की बेटी है और अब वक्त आ गया है कि मैं तुझे तेरी माँ के पास छोड़ आऊं। मुझे एक ऐसी बीमारी है कि जिससे मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। चल मेरी बच्ची, मैं तुझे तेरी माँ के पास छोड़ के आती हूँ। खुशी के ना चाहते हुए भी चील जबरदस्ती उसे अपने साथ लेके चिड़िया के घोंसले में आ जाती है। चील आके चिड़िया को सब कुछ बताती है कि किस तरह से उसने उसका अंडा चुराया था और किस तरह से ये खुशी उसकी बेटी है। चिड़िया भी अपनी बेटी को पहचान लेती है। खुशी मेरी प्यारी बच्ची, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने और तुम्हारे पापा ने पूरे जहां में तुम्हारी खोज की थी। तुम मेरी बेटी जिंदा हो, हम तो उम्मीद खो चुके थे मेरी बच्ची। चील दी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपसे खफा हूं, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी खुशी को मेरे पास ले आई और इसका इतना अच्छे से ख्याल रखा। फिर चील दुखी दिल के साथ वहां से उड़ती हुई वापस अपने घर आ जाती है। समय इसी तरह से दौड़ता रहता है। फिर एक दिन खुशी अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे चील माँ के पास ले चलो। मुझे चील माँ की बहुत याद आई है। मैं चील माँ से मिलना चाहती हूँ। माँ, मुझे ले चलो ना चील माँ के पास। हाँ मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि तू उसे बहुत याद करती है और मैंने भी उसे ज़बान दी थी कि मैं तुझे मिलवाने के लिए लेके आया करूँगी। चल अब तू और मैं उसके पास चलते हैं। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी खुशी को लेके चील के पास आ जाती है। वो सारा रास्ता खुशी को समझाती रहती है कि कोई मसला नहीं होगा, चील तेरी माँ बिल्कुल ठीक होगी। जब वो चील के पास पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि चील बिल्कुल बीमार है और मरने वाली है। वो खुशी खुशी पुकार रही थी। उसके जुबान पर एक ही शब्द था, खुशी और खुशी। माँ, मैं आ गई हूँ। माँ, आपको क्या हो गया है? आप क्यों इतनी बीमार हो गई हो? माँ देखो, मैं आपके पास बैठी हूँ। माँ, आप ठीक हो जाओ, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। खुशी, अच्छा हुआ कि तुम आ गई मेरी प्यारी बच्ची। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं इस दुनिया को छोड़ के जाने वाली हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। मैं सोच रही थी पता नहीं मैं तुझे आखिरी बार देख भी पाऊंगी कि नहीं। धन्यवाद ऊपर वाले का जिसने मुझे तुझे दिखाना नसीब किया। ऐसा कहते ही चील की आंखें बंद हो जाती है और वो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देती है। माँ, तुझे क्या हो गया? माँ, तुम मुझे इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकती। माँ, मुझे तुमसे ढेरों बातें करनी है। माँ, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह से चील अपनी लाजवाल ममता दिखाते हुए दुनिया से रुखसत हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।